I'm delighted to welcome you here for the first of the series of EduTalk for this semester. And we are very privileged and honored to have with us Dr. Tahir Andrabi, our ex-dean. Dr. Tahir Andrabi is Stedman Sumner Professor of Economics at Pomona College. He is the principal investigator on LEAPS, a project which is actually the largest body of educational research, not only in Pakistan, but also in any low-income country. Dr. Andrabi has really contributed to institutional building in Pakistan quite profoundly. Dr. Andrabi was the inaugural dean at the School of Education, which he helped establish. This is, as I mentioned before, he's the co-founder and board member of SERP, that is Center for Economic Research in Pakistan, and additionally, he has served on the boards of PEF, Pakistan Education Foundation, and the National Academy of Higher Education also during his time in Pakistan. Currently, Dr. Andrabi is a member of JEEP, Global Education Evidence Advisory Panel, and Dr. Andrabi's work has been presented in several national and international forums. He has been published in top-tier journals in economics and in education, including American Economic Review, Journal of Public Economics, and Comparative Education Review. Dr. Andrabi has his PhD from MIT in economics, and we are very proud and privileged to have you here, Dr. Andrabi, and we are very keen to listen to your talk today on learning from learnings to earnings, the long-term impact of improving foundational learning. Over to you, Dr. Andrabi. Thank you. Hey, Tayyaba, thank you so much. Listen, it's, coming to LUMS is really special, and coming to SOE in particular, and in this room where I've spent so much time, in fact, even building this room physically, जब ये बन रहा था. And it gives me great pleasure. Ali Chima, the Vice Chancellor here, so I'm a little intimidated. But I'm more intimidated by Sohail Naqvi, the former Vice Chancellor. So, Sohail was my boss, and Bari Saab is here, who was my successor dean, and a great friend, and a great education mind, and lots of people. Farah, Umair, all the faculty, Suleiman, Mariam Heather. It's wonderful. For me, LUMS is really an intellectual home, and so I always look forward to coming here. And I think it's very important to be able to have a real, actual, robust discussion around some of the things, and so I find it no better place than to start. So this is work with some usual suspects. Mere saath hai Asim and Jishnu, who I've been working with now for over 2 decades. Seriously, we started thinking about this thing in 2002. Uske baad kar rahe hain, and then we have added other people. Natalie did her PhD on the LEAPS data set and is now a tenured professor at UCLA. Uske saath hum kaam kar rahe hain. So there's many more, and there's a whole team here. Amna kidhar hai? Amna is there. She's a program manager who's leading a lot of work, and there's a bunch of SOE people. I've hired mere saath jinhone kaam kiya from the first batch, Yaqoob, who's now at the World Bank, Malia Hamid, who was a part and parcel of the foundation of SOE, who's now at Center for Global Development in Washington, Amara Waheed, who's a SOE graduate, she's working with me. So this idea of working with young people, it really motivates me, and I hope I continuously come back. I come to LUMS at least once or twice a year, and I hope your next generation of students I can continue working with them and all that. Okay, so this is a lot of work. This is really 2 separate sets of papers, but uske behind the और papers hai. So this is a little bit of a composite presentation. It's not a classic presentation of a single paper. I presented it in Islamabad. There are too many slides, but my idea is to just speak very quickly through them. So I think the aesthetics might not be the best, but hey, let's try it. Okay. So here we are. Hey, that's me. In 20 years in Pakistan, I have like 2 pictures. I mean, I've visited maybe like 1,000 schools, interviewed too many people. मैं जब अमेरिका में वो जो होते हैं वो मार्केटिंग वाले वो कहते हैं कुछ तस्वीरें दिखाएं अपनी किधर है मैंने कहा है ही कोई नहीं यार. So एक है तो you got to see it. So that's me. This is a LEAP school.
when we were there in Pakistan, and I have to say that from a student's point of view, every idea that I have, that I've worked on, has come from talking to somebody in the field. So these ideas are really germinating from people's actual lives. हम डेटा पे काम करते हैं, लेकिन हम social scientists हैं, तो जो डेटा होता है, you have to remember every data point is a real person, right? It's a real school, a real teacher, a real student, and the data tells, each data set is really a story. And part of the idea of doing empirical work is to bring it out. और ये data analysis मैं बहुत पढ़ाता हूँ, मैं जब SOE में था तो we were really, I was focusing on the quant side of the School of Education. And the idea was you don't do this for its own sake. ये नहीं है कि data करना है for data's sake. कि चलो ये data set, चलो ये empirical काम करें, quantitative काम करें, नहीं. The idea is कि वो data set will help you create a compelling narrative. So the idea of bringing these people's stories from their lives into some coherent pattern that we can then think about is really what we are all about. और इसमें बड़ा important है ये कि ये जो लोग हैं जो हमारे साथ सर्वे करते हैं, ये माएँ हैं, बच्चे हैं, स्कूल टीचर हैं, ये हमें ट्रस्ट करते हैं इस इंफॉर्मेशन के साथ. They spend a lot of time telling us about their lives. So then we have a responsibility, both an ethical responsibility to really do justice to it. Or the only way we can do justice to it is to do it honestly and do it rigorously and to do the best we can. So ये जो development की research है, ये social science empirical, ये बहुत important task है. और ख़ास तौर पे ये इनकी जो stories हैं, ये कभी सामने नहीं आती. Right? हमारे जो बैठे हुए हैं लोग, you know, people talk about the poor being invisible and all that, वो हैं. वही हमारा काम है कि उनकी stories को सामने लेके आना और and to say कि these villages की जो stories हैं, they have something to teach to the best economists of the world who are not general economics. American Economic Review में आसान तो नहीं है ना publish करना भाई इन लोगों की कहानियाँ, यही लोग बैठे हुए हैं ना. Why? Because their stories have lessons which all of us can learn, and I think that's really important. Okay, to bring them to the light. Okay, so that's enough. Okay. पाकिस्तान के बारे में होता है ग्लूम एंड डूम. लर्निंग का ये है, लर्निंग का वो है, लर्निंग का ये है, लर्निंग का वो है. आई कम फ्रॉम दिस कंट्री कॉल्ड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये हालत है. राइट? जोनाथन कोज़ोल जबरदस्त आदमी है ये. इसकी एक किताब है बहुत मशहूर, इलिटरेट अमेरिका. उसके बाद इसने किताब लिखी जो पाकिस्तान में भी कहते हैं सैवेज इनइक्वालिटीज इन लर्निंग. यू गॉट टू रीड दिस बुक्स. मतलब जो कि सो दिस एजुकेशन क्वेश्चंस दैट वी आर फेसिंग between the gaps between the rich and poor. Education का जो promise है is education is supposed to be the great equalizer, right? हम कहते हैं कि जी एक अमीर का बच्चा है और एक गरीब का बच्चा है और through education उनके जो gaps कम होंगे, right? The reality is that's not true. बल्कि if anything education जो है वो अमेरिका में कहते हैं कि वो gap बढ़ा देता है. अमीर का बच्चा आईवी लीग चला जाता है, गरीब का बच्चा किसी स्कूल में जाता है जो functional नहीं होता, वो next generation में gap और बढ़ जाता है instead of equalizing, right? So that's what Kozzol is saying. ये जो है ये PISA का है, ये these are these global tests and all that. उसमें भी बहुत variation है. Countries don't pay attention to this. Just look at the trend. There is a lot of variation. So ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये सारी दुनिया में हो रहा है. I won't let you time. ये अच्छा ये this is something जो education researchers हैं ये सबको पता है, right? Enrollment बहुत बड़ी है. सब साधारण अफ्रीका में ये हाल है, इंडिया में ये हाल है. जिष्णु का एक पेपर है called India Shining, भारत ड्राउनिंग. वो ये है कि जो भी आप बड़ा स्कूल सिस्टम देखते हैं वो चाइना इज काइंड ऑफ सुई जनरस, उसको छोड़ दें, वो तो इस प्लैनेट में नहीं है. बट इफ यू लुक एट इंडिया, यू लुक एट नाइजीरिया, यू लुक एट पाकिस्तान, यू लुक एट ब्राज़ील, यू लुक एट इंडोनेशिया, लार्ज स्कूल सिस्टम, सब में यही हाल है. राइट? लैटिन अमेरिका में, राइट, हर जगह पे. सो दिस आइडिया ऑफ स्टैग्नेंट लर्निंग in the rise of really expanding schooling systems, I think is a very canonical problem. It's not just Pakistan. Huh? There's no Pakistani exceptionalism here. Okay, ये पाकिस्तान का learning crisis है. ये जब मैं शुरू हुआ, अब ये जो है ये मैं this is the first leaps. This was a 2003-04 academic year. ये पाकिस्तान की कहानी थी grade 3 में. हाँ, ये बच्चे थे, ये this is leaps से 120 गाँव थे उस वक्त. ये तमाम बच्चे हैं third graders in those villages in Attak, Faisalabad and Rahim Yar Khan representative. You can see, right? Yeah, है ना, ये मेरा favorite. ये मैंने सवाल लिखा है. मेरे contribution to education in Pakistan, ये fraction 7/3 को
इसको improper fraction से proper fraction बनाए, right? So 7/3, so this is 2 1/3. See how many people can answer this question. 3%. अंग्रेजी का बोल जाए, right? Use word and sentence deep. 1%. ऊपर आ जाए मैच पिक्चर बनाना, वो ठीक है 74%, चलो not bad, right? But you can see, right? चाहे वो मैथ है या अंग्रेजी है, it doesn't look like a pretty picture. 11 में 2011 में वो ये वही बच्चे हैं. These are the same kids. So that's why the Leaves का panel, right? It's calibrated. It's the same kids now 8 years later. So what do you see? I mean, you see a big improvement. चलो 8 साल मतलब बड़ा हो गया बच्चा, अब उसको छोटा सा बच्चा था, 97%, right? So you see, so नीचे जो है उसमें you see a big improvement. Sorry, किधर चला गया? Yeah, right? So you see a big improvement, right? Identify objects, Urdu spelling, हर चीज में improvement, even fractions, right? ये मेरा favorite सवाल है, 16%, right? So this but 8 years later, अगर 7 साल का बच्चा था वो 15 साल का है. ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा. अभी मैं दोबारा गया हूँ इन स्कूलों में. It's not the same kids, but the same schools, same villages, 2024 में. So अगर टाइम हुआ तो वो मैं उसकी भी बात करूंगा of improvement. So there is improvement. There's no doubt about it. कि ये कहना कि जी अमेरिका में अगर आप जाएं टेस्ट स्कोर्स को देखें पिछले 20 साल के इसी टाइम इंटरवल में, it's flat. ठीक है, American test scores haven't gone up. ठीक है, so here you see, do definitely see an improvement, so that tells you something. So that's our context, right? You're seeing some improvement and we want to really contextualize. ये जो है, you can see, so the second thing is there's a lot of heterogeneity. ये different जो है ये quintiles हैं, ये वाले जो बच्चे हैं ये टॉप पे हैं, ये उससे नीचे हैं, एक है बिल्कुल पैदल ग्रुप, राइट? मतलब जिनको कुछ भी नहीं आता, ठीक है? I mean look at that, right? ये जो है ये 2018 में हमने किया है यार, ये उन्हीं बच्चों पे, ये अडल्ट हो गए हैं अब, right? So I mean, you know, so you see a distribution even in these people. So the average conceals a lot. Average को देखें, लेकिन distribution भी है. कुछ बच्चे बहुत आगे आ रहे हैं, कुछ उधर के उधर ही हैं. अच्छा, ये जिष्णु ने किया, ये मेरा नहीं है, लेकिन हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है. We wanted to do this functional stuff too, right? एक तो है ना ये अभिजीत बैनर्जी का काम है, बहुत इंटरेस्टिंग ना, कि अभिजीत बैनर्जी कहता है कि बच्चों को इंडिया में आप दें, वो बम्बई में गया, पता नहीं किधर गया, उसने वो जो है वो उनको पेंसिल पेपर पे सवाल देता है मैथ के, सब फेल हो जाते हैं. फिर वो उनको कहता है कि यार पैसे देता है कि जाओ बाजार जाओ, ये सौदा लेके आओ, ये इतने माल्टे लेके आओ, इतने सेब लेके आओ. वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है ना कि सेब की क्या कीमत है, माल्टे की कीमत है. वो जब वापस आते हैं वो उसको हिसाब देते हैं, वो बिल्कुल सही होता है. And Banerjee is like, what the hell is going on, right? So it looks like people are functionally way better than their exam scores reflect, right? So there's some sense of that. ये हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि देखें तो सही. So ये हमने बनाए हैं, ये जो सवाल हैं, right? These are actual things, right? ये जो है ये अब this is a pretty complicated math problem, right? कि बिजली का बिल पाकिस्तान में उसमें स्लैब प्राइसिंग होती है, उसका हिसाब, फिर ये टेक्स्ट मैसेज, ये जो है ये जो है यार मैं गांव से बाहर रुका हुआ हूँ, मेरी मोटरसाइकिल ख़राब हो गई है, क्या मुझे लेने आ सकते हो? बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है यार, किसी को पढ़ना या इसमें. सो ये ये हम ये भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों की लर्निंग को जरा फंक्शनल स्किल्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें. ये एक सेपरेट प्रोजेक्ट है ये, बट यू कैन सी कि इसमें काफ़ी ज़्यादा इट्स अ लिटिल बिट बेटर. अगर आप इससे देखें, ये जो है ये रेगुलर है और ये फंक्शनल है, राइट? So you can see, right? So we are trying to get learning in various contexts. ये problem है, okay? So learning problem, right? So what do we do about it? This is a big problem in Pakistan. It's a problem the world over. What do we do? So there are 5 things that we think you need to really figure out. Despite severe deficits, evidence on value of investments in foundational learning remain unclear. मतलब इसमें जो learning crisis में को अगर solve करना है, इसमें investment लगेगी एक, तो उस investment की value क्या है? और अगर उसको हम कैटेगराइज करना चाहें तो क्या करेंगे, मसले क्या हैं? ये मसले हैं जी. फेड आउट बहुत बड़ा मसला है. फेड आउट का मतलब ये है कि अभी आपने इंटरवेंशन की, पंजाब में किया, पढ़ा लिखा पंजाब, जो भी किया, ये भी किया, आप इंटरवेंशन करते हैं, साल 2 साल तो ऊपर रहती है, उसके बाद वो दोबारा वापस आ जाती है. नतीजा वही ढाक के 3 पात, मतलब वो ये है कि एंड में वहीं आती है. अमेरिका की एक बहुत मशहूर स्टडी है, सबसे मशहूर, राज चेटी की हेड स्टार्ट के ऊपर, जिसकी है ना वैल्यू ऑफ अ किंडरगार्टन टीचर, गुड किंडरगार्टन टीचर, जिसमें से $1 million है वैल्यू. लेकिन अगर आप उसको गौर से देखें उस स्टडी को, एक अच्छा रैंडमाइज्ड है, तो एक अच्छा किंडरगार्टन टीचर है, वो आप ले कहते हैं, एक जगह ख़राब किंडरगार्टन टीचर है, उन दोनों को कंपेयर करते हैं, वो तकरीबन 6-7 साल तक जो अच्छे किंडरगार्टन टीचर है उसके बच्चों के स्कोर्स बेहतर रहते हैं, 8वीं 9वीं तक. लेकिन बाय द टाइम वो 10वीं 12वीं में पहुँचते हैं, उनको ट्रैक कर रहे हैं, तो वो कन्वर्ज कर जाते हैं. सो द प्रोग्राम का जो इफेक्ट है ऑफ अ गुड किंडरगार्टन टीचर,
It doesn't stay for very long. So this is called the fade out effect. अब ज़्यादातर जो स्टडीज़ होती हैं, ज़्यादातर जो रिसर्च होती है, उसमें वो आप टेस्ट करते हैं, 1-2 साल उनको ट्रैक करते हैं और देखते हैं जी बड़ा रिजल्ट आ गया, चलो जी स्केल अप करो. What you don't do is track, right? So that is one of the problems that we are trying to deal with, कि फेड आउट को कैसे डील करें. दूसरा, ये बहुत बड़ा मसला है कि अगर आपने एजुकेशन के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स देखने हैं, हम देखना चाह रहे हैं, एजुकेशन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ना, कि बच्चे को अभी फाउंडेशनल लर्निंग है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं जमात में आपने उसको कोई बेहतर तालीम दी, वो उसका रिजल्ट जो है वो 15-20 साल के बाद आएगा ना. मतलब जब वो पढ़ा जाएगा, कॉलेज जाएगा, लेबर मार्केट में जाएगा, नौकरी करेगा, शादी होगी, बच्चे होंगे, आप देखते हैं बच्चों पे क्या इफेक्ट होगा ना, मतलब आपने लंबा इफेक्ट देखना है. प्रॉब्लम है इसके लेबर मार्केट में, it's not just education. It could be that the education effects remain. These kids get a lot of skills, but it doesn't translate into earnings. Why? Because the labor market is totally screwed up. Labor market जो है वो मेरिट को वैल्यू ही नहीं करती, उसमें सारी रिश्तेदारियां, तो सारे कॉन्टैक्ट, सारे नेटवर्क वही चलते हैं हायरिंग में. तो फिर क्या फायदा लोगों को तालीम देने का, जब वो कहते हैं हमें कोई फायदा ही नहीं होगा. So these are constraints in other markets. So we have to be really aware of that, right? That's a big problem, right? कि एजुकेशन का रिटर्न सिर्फ एजुकेशन पे नहीं डिपेंड करता, स्कूलों पे नहीं डिपेंड करता, इंटरेक्शन विद अदर मार्केट्स. 3, ये बहुत बड़ा मसला है, डिलेड रियलाइजेशन. ये जो है ये रेट ऑफ रिटर्न, या आप बात करें फाइनेंस मिनिस्टर से, वो क्या कहेगा? आप किसी भी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन के पास चले जाएं, वो क्या कहता है? वो कहता है जी मैं आज कोई काम कर रहा हूँ, मुझे 6 महीने के बाद रिजल्ट चाहिए, राइट? शॉर्ट टर्म मायोपिया in terms of seeing results in पाकिस्तानी, सारी दुनिया में पॉलिसी मेकिंग में, मैं पाकिस्तानियों को ऐसे कह रहा हूँ. अब ये जो है अगर 10-15 साल में आता है, तो अगर मतलब अगर 5% इंटरेस्ट रेट है, राइट, जिस 5% में कोई चीज़ ग्रो कर रही है, तो $100 इन्वेस्टमेंट नीड्स टू यील्ड 10-15 साल के बाद 200 ना, जिसको कहते हैं वारा खाए ना, तब वो ठीक है. एंड द थर्ड इज दिस इज अ वेरी बिग इशू, राइट? द बिग इशू इज के ये बहुत लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान में हालात बहुत ख़राब हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ कोई चेंज नहीं आ रही. सो दिस इज़ अ सर्च फॉर व्हाट वी से कि ट्रांसफॉर्मेशन. कि बहुत लोग मुझे कहते हैं तुमने सारी ज़िंदगी काम किया है, हैव यू ट्रांसफॉर्म्ड लाइव्स? कि एनीथिंग दैट वी वांट टू डू इट शुड बी ट्रांसफॉर्मेटिव. सो दैट्स सेइंग अ वेरी बिग इफेक्ट, राइट? सो मैं उसमें आपको एक बता दूँ इसमें जो क्या है, सो राइट, ठीक है. एंड देन ये भी बड़ा मसला है कि भाई ये आप कह सकते हैं, मैं स्कूल ऑफ एजुकेशन में बैठा हुआ हूँ, मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, मुझे मतलब ये है कि एजुकेशन वालों से हर तरफ गालियाँ पड़ती हैं कि तुझे जगह पता है एजुकेशन का, तू इकोनॉमिस्ट है, ऑल यू केयर अबाउट इज दो रेट ऑफ रिटर्न एंड ऑल दैट. एजुकेशन हैज़ अदर गोल्स, ठीक है, बिसाइड्स टेस्ट स्कोर्स एंड स्किल्स, कॉग्निटिव अचीवमेंट. क्या मल्टी डिमेंशनलिटी. बाबर साहब, ग्रेट मैन, आई ओ अ लॉट टू हिम. बाबर साहब मुझे हमेशा आके पूछे थे, तार तुमने मतलब ये है कि अगर ये लड़के तेरे एसओई में आप बैठे हुए हैं, यहाँ सारे एसओई के ग्रेजुएट, अगर ये वहाँ भी निकल के झूठ बोले तो फायदा क्या है, राइट? कैरेक्टर बिल्डिंग, तरबियत जिसको कहते हैं, कि भाई एजुकेशन इज वे मोर देन जस्ट एबिलिटी टू सॉल्व मैथ प्रॉब्लम्स, इक्वेशंस एंड ऑल दिस, मल्टी डिमेंशनलिटी ऑफ आउटकम्स. उसके ऊपर भी मैं बात, दिस इज अ वेरी सीरियस इशू. हम टेस्ट कोर्स के पीछे क्यों जाते हैं? मैं सारी जिंदगी टेस्ट कोर्स करता हूँ, मैंने बच्चों को पाकिस्तान में टेस्ट किया, दुनिया में किसी ने नहीं किया और ना कभी करेगा, क्योंकि इतनी बेवकूफ़ाना हरकत. But the point is there are other things besides test scores. अब पाकिस्तान में नहीं हो रहा ये काम, लेकिन अमेरिका में बड़ा इंटरेस्टिंग काम हो रहा है ये, और उसके बड़े रिमार्केबल रिजल्ट्स हैं. वो मैं थोड़ा एक आपको दिखाऊंगा, लेकिन और भी मैं आई एम वेरी फेमिलियर विद दैट वर्ड. ये करना चाहिए ना, पार्ट ऑफ एजुकेशन हम नहीं करें, वो आप लोग सोचें उसके बारे में कि कैसे करना है. So fourth objection is very interesting, right? यार ये थोड़ा सा, मैं प्रोफेसर हूँ, इधर बड़े बड़े प्रोफेसर भी बैठे हुए हैं, लेकिन और लोग भी हैं, तो थोड़ा सा स्टैट्स का लेक्चर हो जाए. ओके, व्हाट्स द स्टैंडर्ड डिविएशन? भाई एक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, राइट? पता है ना सबको डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सबको पता है ना, बेल कर्व है वो फलाना, उसमें समथिंग इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड डिविएशन. I'll tell you why, because we use standard deviations a lot in our analysis. This is a public lecture. This is not a talk to a seminar in a graduate PhD program. ठीक है? Standard deviation is a numbers that tell us how spread out the distributions are. ये है ना, ये आपने बच्चों को टेस्ट किया है, किसी इनके 70-80 आए हैं, इसके 10 आए हैं, 20 आए हैं. This is called a spread of a distribution, right? A standard deviation जो है, one standard deviation. ये बहुत सारे सुनने में आता है, ये कितना standard deviation, कितना standard deviation. ये आधे लोगों को USAID में नहीं समझ आती, ये उनके लिए मैंने तैयार किया हुआ है. वो जो हमें हमारे सारे पैसे डिटरमिन करते हैं, सीरियसली पीपल डोंट गेट इट. सो आई थिंक इट्स माइट एज वेल टॉक अबाउट इट राइट इन द बिगिनिंग.
1 स्टैंडर्ड डिविएशन इंक्रीज विल मूव यू, अगर आप 50th परसेंटाइल पे हैं तो उससे जो एक स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर है वो 85th परसेंटाइल पे लेके जाता है। ओके, तो एक बच्चा 50th परसेंटाइल में है, एक स्टैंडर्ड डिविएशन जो उससे बेहतर बचा है वो 85th पे चला जाता है। ठीक है, उसका 0.1 इट्स नॉट लीनियर, उसका जो 0.1 स्टैंडर्ड डिविएशन है, मैं इस पे आऊंगा दोबारा, ठीक है, मूव यू फ्रॉम द 50th टू द 54th परसेंटाइल। ठीक है, दैट्स 0.1 स्टैंडर्ड डिविएशन। ये मेरी एक यूएसए के ऑक्सफोर्ड में एक बंदी थी, उससे बहुत बहस हो रही थी, वो मेरे पीछे पड़ गई, तो मैं उसको ये नो मैंग्रेस के साथ, उसने मुझे डाला बीच में, वो काफ़ी बड़ा क्राउड था वहाँ पे, तो मैंने उसको कहा कि आई एम टेलिंग यू नाउ कि जब मैं मरूंगा तो मेरी कब्र पे कुतबा होगा, ठीक है, उस पर लिखा होगा यू नो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसके नीचे मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 0.1 स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, 0.1 स्टैंडर्ड डिविएशन जो है ना, वो मतलब वो मेरी जिंदगी है। अब आप सोचें कि 25 साल में कह रहा हूँ लीव्स का, राइट, जितना हमने काम किया वो शायद दुनिया में किसी ने नहीं किया। कहाँ से कहाँ लेके जाता है 0.1 स्टैंडर्ड डिविएशन, 50th to 54th परसेंटाइल। ओके, फॉर श्योर नॉट ट्रांसफॉर्मेटिव, राइट। अगर आप कहते हैं कि एक बच्चा जो 50th परसेंटाइल पे है तो 20 साल काम करके उसको 54th परसेंटाइल पे ले गया, क्या कमाल किया। ओके, दैट्स व्हाट वी वांट टू वर्क ऑन एंड सी कि ये कमाल है या नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, ये यहाँ पे बहुत बड़ी एक टेंशन है, इंक्लूडिंग एट वेरी हाई लेवल्स। चीमा साहब के साथ भी हो चुका है, कासिम ख्वाजा साहब के साथ भी हो चुका है जी। ये क्या है जी, आपने इतना काम कर लिया तो ये 0.1 से ज़्यादा ही आता है मेरा पास, मैं ज़रा वैसे एग्जैजरेट कर रहा हूँ, बट एनीवे ये दिस इज तेरा जीरो इज इफ दिस इज द बेंचमार्क, मतलब ये मीडियन है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे सवाल हैं उसमें कितना फ़र्क पड़ता है 0.1। अगर आपकी, मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आपको एक स्टडी मिलती है जिसमें वो कहते हैं कि जी उन्होंने टेस्ट स्कोर 0.4 स्टैंडर्ड डिविएशन इंप्रूव किए हैं, वो बहुत बड़ा एक गेन है। मैंने अभी तक ऐसी कोई स्टडी नहीं है, एक दो है, ठीक है, लेकिन 95 पर MIT कहती है, जो JPAL ने अपनी जो ग्लोबल सर्वे किया है उसमें उन्होंने कहा है कि 0.15 जो है ये इज द बेंचमार्क फॉर अ गुड स्टडी। ठीक है, ये बेंचमार्क है। अब कितना पॉइंट वहां आपको नजर आएगा कि जी हमने स्टडी की 0.15 स्टैंडर्ड डिविएशन है, कि मतलब क्या है उसका, मतलब ये है, ये हमारे सवाल है ना, ये हमने पाकिस्तान में पूछे हुए हैं। 0.15 स्टैंडर्ड डिविएशन का ये है कि अगर मीडियन जो 0 स्टैंडर्ड डिविएशन है, जो जिसको बेंचमार्क किया हुआ है, उसमें 23% ये बच्चे जवाब दे सकते हैं। 0.15 का मतलब 28% बच्चे ये जवाब दे सकते हैं। 0.4 का मतलब 38% ये बच्चे जवाब दे सकते हैं। ठीक है, लेट मी गो ऑन दिस साइड, आई एम स्पेंडिंग टू मच ऑन दिस साइड। Match picture with word, this is the easiest. So it's not linear ना, मतलब 0.15 will take you to 95, 97। वो जी अब इधर आ जाए मैथ के, काउंटिंग में ये है, ये देखे ना सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शंस, ये 0.84 और 1% है भाई, मतलब ये 1% से नीचे है। आप 0.15 पे जाते हैं तो 0.84 से वो 1% पे चला जाता है। इंप्रूवमेंट है ना, मतलब 0.15 स्टैंडर्ड डिविएशन है, लेकिन इसका मतलब है कि पहले वो 1% से 10 पॉइंट नीचे था, अब वो 1% 10 पॉइंट ऊपर हो गया। दैट्स अ गेन। अब इज दैट अ बिग गेन? क्या यू थ्रो इट अवे, यार ये तो कुछ भी नहीं है, आप 1% पे हैं और आप कह रहे हैं कि जी बड़ी डिक्लेयर सक्सेस। सो यू नो माय पॉइंट इज, हमने इसके आगे और भी किया हुआ, these are just showing you some benchmarks of 0.4, but look at this, ये subtract fraction 0.4 पे भी आप कर रहे हैं तो वो बच्चा किधर पहुंचता है? 1.76 of the people can answer the questions correctly. मैं भी KP में था, उनके सेक्रेटरी को बता रहा था, डिफरेंट प्रोजेक्ट, I did a very big project on KP on learning। तो उसमें जो था वो आपको मैं इक्विवेलेंट बताता हूँ उसका क्या है। मैथ में हम 4 वर्ड प्रॉब्लम देते हैं, ठीक है, आई लव दोज वर्ड प्रॉब्लम को। उसमें अंग्रेजी भी होती है, कॉम्प्रिहेंशन भी होती है, कंप्यूटेशन भी होती है, कंसेप्चुअल भी होता है, तो आई एम काइंड ऑफ ऑब्सेसिंग अबाउट दिस वर्ड प्रॉब्लम्स। उसमें क्या है, हमारा जो कंट्रोल है, जो आम KP का बचा है चौथी जमात का, हम 5 वर्ड प्रॉब्लम देते हैं, उनमें से 5 में से 5 0, मीडियन बचा 0 करता है, 0, ठीक है, उसको एक भी नहीं करता वो मीडियन बचा जो। हमने कितनी बड़ी इंटरवेंशन की, ठा 0.18 स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, उसमें रिजल्ट आया, ठीक ठाक है, आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन ट्रांसलेट एक्चुअल में क्या हो रहा है, अब वो जो मीडियन बचा है वो 5 सवालों में से 1 सवाल का जवाब दे सकते। इज दैट एन इंप्रूवमेंट? बट द क्वेश्चन इज,
आई वॉन्ट टू फिगर आउट कि अगर इतनी इंप्रूवमेंट हो तो वो जिंदगी में क्या कहां तक लेके जाती है आपको. द क्वेश्चन इज कि आप मुझे कह सकते हैं नहीं है, मैं कहता हूं है. अब उसको अब जिंदगी में फर्क पड़ने के लिए मुझे 10-15 साल इंतजार करना पड़ेगा, देखो तो आगे जाके क्या करता है. दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. बट दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट, राइट. अच्छा, ये फिफ्थ ऑब्जेक्शन है, ये मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ. ये बो जैक्सन है, ये नॉर्थ वेस्टर्न में है, ये फिर ओबामा की काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर में था, यंग इकोनॉमिस्ट, बहुत लायक है. ये जो है ये नॉन टेस्ट स्कोर को देख रहा है. ये हमारी रिसर्च नहीं है, दास करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें पाकिस्तान में और करनी चाहिए. ही इज लुकिंग एट बिहेवियर ऑफ अदर्स, राइट. कि स्टूडेंट बिहेवियर का अमेरिका में बहुत ज्यादा हो रहा है कि यू कैन सी कि पुलिस के साथ उनके क्या इंटरेक्शन है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्कशन ऑन ब्लैक व्हाइट टेस्ट स्कोर गैप, क्रिमिनलिटी कितनी है, इस तरह की चीजें, ठीक है. एंड व्हाट ही फाइंड्स, व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग, आई डोंट नो वेदर दैट्स ट्रू इन पाकिस्तान और नॉट. What he finds is that he can track people, और वो टीचर्स के साथ देखता है, and it turns out that the teachers who improve student behavioral outcomes later on are not the ones who are improving test scores. It's very provocative. अभी एक बंदा योटम शेमटॉव, वो UCLA में है, वो LA में कर रहा है, ये उसको मैं बहुत अच्छी तरह देखा, वो LA स्कूल डिस्ट्रिक्ट में, उसका भी इसी तरह का रिजल्ट आ रहा है. सो दिस आइडिया कि टीचर्स जो आपकी जिंदगी में और चीजों में आपका करते हैं ना, हम सब के थे ना, मैं भी. द प्रॉब्लम विद रिसर्च एंड एजुकेशन इज कि एवरी सिंगल वन ऑफ अस हैड अ टीचर. वी हैव हैड गुड टीचर्स एंड वी हैव टेरिबल टीचर्स. मेरे तो दोनों थे. सो द क्वेश्चन इज, यू नो, मेनी पीपल ट्रांसफॉर्म्ड अस. नाउ द क्वेश्चन इज, यू नो, वाज इट लाइक, यू नो, मैं और सोहेल नकवी क्लास फेलो हैं, ये बहुत मैथ में लायक था, तो वो ये है कि द यू नो, आई डोंट नो, महमूद साहब जिसने हमें इंटीग्रेशन सिखाई थी, डिड ही ट्रांसफॉर्म अस, और सिद्दीकी साहब, you know, who told us about life and all that, right? I'm saying कि education research में ये एक हमारे research में एक gap है, but we need to move forward. लेकिन उसमें आप किस तरह track करेंगे? How are you going to measure these things? What are you going to do? And things like that, right? I'm just presenting it because this is a question that you can say about this research, and I want to be open about what the gaps are. और ये अमेरिका में हो रही है, ये यहाँ नहीं हो रही, ये बल्कि LMIC कहीं नहीं हो रही, लो मिडिल इनकम कंट्री में, ठीक है, क्योंकि हमारे पास डेटा ही नहीं है, वो हम इस तरह की चीजें कर ही नहीं रहे, राइट. तो मसलन लम्स का अगर आप देखना चाहें कि लम्स का लोगों की जिंदगी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इट कुड बी कि आप रेट ऑफ रिटर्न देखें, तनख्वाहें कितनी बढ़ा रहे हैं अमेरिका में जिस तरह होता है, या आप देखें कि, बट यू नीड टू सी कि आर दे, बाबर साहब जो कहते हैं ना, आर दे बिकमिंग गुड सिटीजन्स, राइट. यू नो, एजुकेशन इज अबाउट सिटीजनशिप, राइट. आर दे बिकमिंग बेटर कम्युनिटी मेंबर्स, आर दे बिकम बेटर हस्बैंड्स, फादर्स, मदर्स, ऑल ऑफ दैट. ना, वी नीड टू डू दैट ना, हम नहीं कर रहे हैं. एनीवे, okay, we anticipated many of these issues in 2003. We started this LEAPS project, Children of the New Millennium. हमें उस वक्त हमें ये ख्याल था, हम थोड़ा सा far thinking थे कि हमने शुरू ही ये किया with this idea of creating a panel, ठीक है, कि हम adult lives में क्या होगा उनकी. अच्छा, ये बड़ा important है. So not enough to show that we can improve test scores in a randomized control trial, ये हम सब करते हैं RCTs ताकि causal effect आए. We hit the 5 objections. हमने ये इन सब objections को hit करने की कोशिश की. ये बड़ा प्रॉब्लम है ना. Not enough to show that children with higher test scores in childhood have higher earnings later on. ये तो correlation हो गया ना. The problem is कि this is not causal. मतलब एक बात याद रखें, एक टी-शर्ट तो बना लो यार, यहाँ जो सबको दे दो कि correlation does not imply causation. ना, this is one of the big lessons that people in life need to understand. ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए. And that's because there are so many other confounding omitted variables, ये चीजें which predict, you know, kids जिनके घर का माहौल अच्छा है, they score well on tests. Kids जिनके घर का माहौल अच्छा है, they also make more earnings. अब वो लगता ये है कि test scores और earnings are correlated, even though both are stemming from an omitted variable. Classic, I teach this stuff. So we have to be careful on this. The 20-year plan. So work with villages to improve. FLN means foundational learning outcomes within a randomized control trial. Track these children in these villages for the next 20 years to see what happened. Our study, Punjab, yeah, we are in Punjab. ये मतलब आपको बताने की जरूरत नहीं है. 1998 में 13 million children in school, blah blah blah. Enrollment fractions यहाँ out of school का बहुत ज़्यादा फैशन है बात करने को, उसमें भी किसी टाइम अगर मौका मिला तो बात कर लेंगे. बट लुक एट द एनरोलमेंट इंक्रीज ना, कितनी ज़्यादा हुई है. मतलब आउट ऑफ स्कूल तो है, लेकिन एनरोलमेंट इंक्रीज बहुत ज़्यादा हुई है ना. मतलब मैसिव एनरोलमेंट इंक्रीजेस, और ये आगे भी चल रही है. ये मतलब अभी ख़त्म नहीं हुई है, तो 2018 का डेटा है. प्राइवेट स्कूल्स
60,000, more than 60,000 in Punjab in 2015, और मेरी prediction है, मैं आज बारी साहब से बात कर रहा था कि given the objective circumstances, it's actually going to exponentially increase. ये अभी शुरू हुई है. We can talk about it अगर Q&A में कि पाकिस्तान I feel is entering the beginning of a virtuous cycle. So एक presentation हमने बनाई है, वो मैं नहीं दे रहा, लेकिन उसका title है Some Good News. So there's a lot of good news here. As long as you are willing to buy the 0.15 standard deviation. ठीक है? अच्छा, ये हमने किया report card. This is so I'm going to tell you that कि एक intervention हमने की 2004 में, अब उसको हम long term track कर रहे हैं कि उससे क्या फर्क पड़ा. चूंकि ये एक randomized intervention थी, तो इसके जो भी effects हैं, वो जो learning outcomes में आ रहे हैं, वो causal है. तो I can now tell you कि ये जो चीजें हो रही हैं, ये एक learning outcome की वजह से हो रही हैं, ना कि किसी और वजह से. बहुत मेहनत की है just to make that point. ये हमारा एक लीव्स का, ये जिष्णु ने ये डॉलर साइन बनाए हुए, मैंने नहीं बनाए हैं. So the idea is कि these are Google Maps. We have the Google Maps for all these villages. This is a typical village in Punjab. अब इसमें देखें कि सीन क्या है. इस विलेज में ये दोनों ये एक ट्रीटमेंट विलेज है, एक कंट्रोल विलेज है. 1 2 3 4 5 6 ये 5 प्राइवेट स्कूल हैं इस गांव में, और ये गांव की मेन आबादी है, और 2 गवर्नमेंट स्कूल हैं जो बाहर हैं शामलात में. That's like a typical scenario now in Punjab. बहुत सारे गांव हैं जहां नहीं है, लेकिन जहां पे है, अब इस वक्त तकरीबन 70% ऑफ आबादी रह रही है इस तरह के गांव में पंजाब में. अब ये वर्ल्ड बैंक की बात है, देखिए आपने वो जो अर्बेनिसिटी पे आई है रिपोर्ट, राइट? फैसिनेटिंग रिपोर्ट फ्रॉम गूगल मैप्स एंड ऑल दैट टू कैलकुलेट अर्बेनिसिटी इन पाकिस्तान, राइट? आई नीड टू लुक मोर इनटू इट, बट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ विलेजेस आर लुकिंग लाइक दिस. अब पाकिस्तान में जाए तो वो पेंट नहीं लगता, बट यू नो, सो दिस आइडिया, वो जो यूनिसेफ का आइडिया था उस जमाने में जब मैंने पढ़ाई शुरू की थी कि जी वो गर्ल चाइल्ड को एक्सेस नहीं है, वो एक लड़की है, एनरोलमेंट डिसीजन कौन करता है, क्या करता है, वो काफ़ी हद तक सुपरसीड हो गया. इधर मसला ये है कि किस स्कूल में भेजें, कहाँ भेजें, क्या करें, वो डिसीजन प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया. वो पुराना फैसला खत्म हो गया जी पिंडों के बच्चों को आप अवेयरनेस दें, तो ये करें तो वो करें. ओके, रिपोर्ट कार्ड हमने दिए, हमने हर बच्चे को टेस्ट किया इन गाँव में, एवरी सिंगल 3rd and 4th grader. Hey, what do you see here? Check this out. हाँ, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ भाई, ऐसी बात नहीं है. ये हमने रिपोर्ट कार्ड बनाए. इन रिपोर्ट कार्ड्स में तो हमने क्या कहा, हमारा एक व्यू है कि ये एक फ्रिक्शन थी. ये जो हमने सैंपल जमा किया 2003 में, तो जो हाउस होल्ड हमने पूरा सेंसस किया इन गाँव का, एवरी सिंगल हाउस होल्ड 120 गाँव में. मसला क्या था? मसला ये था कि 75% जो हमारी माएँ थी इस सैंपल में, वो इलिटरेट थी, लाइक सिफर, मतलब जीरो एजुकेशन थी. तो अब द क्वेश्चन इज कि अगर आप इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है कि कहाँ स्कूल भेजना है, किस तरह करना है, स्कूल क्वालिटी किस तरह जज करेंगे, आपको कैसे पता है कि बेटा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, बेटी आगे है पीछे है फलाना है, आप तो बिल्कुल इलिटरेट है, तो क्या करेंगी? और दूसरा ये है कि अगर ये मार्केट इतनी ज़्यादा आ रही है, तो मार्केट का एक बहुत क्लासिक प्रिंसिपल है कि मार्केट फंक्शनिंग के लिए कोई दोनों साइडों में इंफॉर्मेशन बराबर होनी चाहिए. इसी तरह नहीं, मैकेनिक के पास जाएँ, मैं जाता हूँ डेंटिस्ट के पास, मुझे डेंटिस्ट कहता है कि $2,000 का काम कराना है. आई हैव नो आइडिया कि वो सही कह रहा है या गलत कर रहा है. आई हैव नो वे ऑफ चेकिंग. मैं वो कैसे देखूंगा आपने कि क्या हो रहा है मेरे, राइट? तो उसके पास दैट्स कॉल्ड एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन. मार्केट, यू नो, सो द पॉइंट वाज कि वी थॉट कि यार ये माएँ जो हैं इनको पता ही कुछ नहीं है, किस तरह करें. इस पर मैंने बहुत काम किया, तो कम से कम बताएं तो सही. और दूसरा ये है कि तो इसमें आई टेल यू व्हाट हैपेंड. सो व्हाट वी से, इसके बच्चे की कारकर्दगी, ये आगे इसमें अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है. बच्चे को बताया कि बच्चा क्या कर रहा है, फिर स्कूल के आपके बच्चे की कारकर्दगी स्कूल के बाकी बच्चों के मुकाबले में, और फिर जो तीसरा ये था, उस वक्त हमें नहीं ख्याल था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि आपके स्कूल की कारकर्दगी गांव के बाकी स्कूलों में. और फिर हमने प्रिंसिपल्स को ये भी बताया कि आपके गांव की कारकर्दगी हमारा जो बाकी सैंपल है उसमें कैसे. तो लॉट्स ऑफ डिटेल इन्फॉर्मेशन, और टीचरों को बड़ी डिटेल रिपोर्ट कार्ड, फ्रैक्शन फ्रुक्शन हर चीज के ऊपर. ये शेर मैंने लिखा था बारी साहब के लिए, इकबाल का, सितारों से आगे जहां होंगी, राइट, ड्रामे के लिए. अच्छा, ये इसकी बैक साइड है. इसमें हमने सारे स्कूलों की लिस्ट बनाई, एंड देन हमने आधे गांव जो थे उसमें इनका बेहद प्रचार किया. वी डिड अ लॉट ऑफ, वासम कर रहा था, वी डिड अ लॉट ऑफ डिसेमिनेशन, पेरेंट्स के साथ, स्कूलों के साथ, सब कुछ किया. उसका रिजल्ट क्या आया? व्हाट हैपेंड? टेस्ट स्कोर्स इंक्रीज in the treatment villages by 0.1 to 0.12 standard deviation. ठीक है? इसमें और भी ज्यादा, मैं एक और बात बताता हूं, इसमें जो था
जो प्राइवेट स्कूल्स थे उनकी, जो टॉप प्राइवेट स्कूल्स थे उनकी फ़ी इंक्रीज होनी कम हो गई, क्योंकि जो टेस्ट स्कोर है ये एवरेज टेस्ट स्कोर इंक्रीज है। जो नीचे प्राइवेट स्कूल थे बिलो द मीडियन, उनके स्कोर ज़्यादा बढ़े। तो जो मार्केट के प्रेशर की वजह से जो टॉप प्राइवेट स्कूल थे वो भी तरह प्रेशर में आ गए कि ये नीचे वाले भी बेहतर हो रहे हैं, फीस कम होगी। एंड इसका जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि गवर्नमेंट स्कूल जिनके ऊपर आप कहते हैं कि यार यहाँ ब्यूरोक्रेट बैठा हुआ है, ये है वो है, सोफिया किधर है, फ्रंट लाइन ब्यूरोक्रेट किधर है, या फ्रंट लाइन ब्यूरोक्रेट, वो भी स्कूल इंप्रूव हुए। दैट्स काइंड ऑफ अ मिस्ट्री। व्हाट हैपेंड इज कि मैं 10 साल के बाद, 15 साल के बाद मैं उसी गाँव में जा रहा था, उस इलाके में फैसलाबाद में, तो मुझे मेरी जो सर्वे टीम है उसने कहा कि भाई ये एक वो है रिपोर्ट कार्ड विलेज। तो मैंने कहा चलो देखे जाके यार रिपोर्ट कार्ड विलेज में, हमने इतनी पहले की थी वो। मैं उधर गया, एक स्कूल में गया, प्राइवेट स्कूल। तो मैंने उस आदमी को कहा जी आपको याद है इधर कोई 10-15 साल पहले लोग आए थे, हमने रिपोर्ट कार्ड किया था, कुछ आपको याद है? उसने कहा जी बिल्कुल याद है। मैंने कहा क्या हुआ था? उसने कहा था जी वो गांव में एक थरथली मच गई थी। मतलब दिस इज एग्जैक्ट कोट कि गांव में एक थरथली मच गई थी जी, कि वो हुआ ये कि स्कूल्स पिक्ड इट अप। मैं जो था, ये स्टडी जो थी, अगर आप इस पे देखें तो ये वर्ल्ड बैंक ने फंड की हुई थी। तो उसके नीचे हमें हर, ये जिस तरह बकवास करते हैं, हमें हर चीज़ पे लिखना पड़ता है वर्ल्ड बैंक फंडेड। अच्छा, तो वो स्कूलों ने इश्तिहार निकालने शुरू कर दिए। वो लोकल अखबार होते हैं और वो बैनर बनाते हैं ना गांव में, वो बैनर लगा देते हैं। उस बैनर में लगाया हुआ वर्ल्ड बैंक डिक्लेयर्स स्कूल नंबर 1। वो जो था वो नंबर 1 था। मुझे खाता है, ईमेल्स आई, मैसेजेस आए कि जी आपने बड़ी ज्यादती की है, जिस दिन आपने टेस्टिंग की थी वो मेरे 2 बेस्ट बच्चे नहीं आए थे, आप दोबारा जाके करें, ये करें, वो करें। यू नो इट रियली जो होती है एक अवेयरनेस ऑफ दिस क्वालिटी एंड ऑल दैट स्टार्टेड। फिर वो आदमी, प्रोबेबली माय लाइफ, यू नो, वन ऑफ द फाइनेस्ट मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ। फिर वो बंदा मुझे कहता है जी आप आए मेरे साथ। तो अपने पीछे वो छोटे छोटे उनके कमरे होते हैं, उसमें उसका जो दफ्तर था प्रिंसिपल का, उसमें मुझे लेके गया। उसमें एक तस्वीर लगी हुई थी और एक लड़की की तस्वीर थी, और जिसको वो बाबा मौलवी था, मतलब दाढ़ी वाला, मुझे उसको वो लड़की के साथ हाथ मिला के उसको एक इनाम दे रहा था। मैंने कहा ये क्या है? कहता है जी ये बच्ची थी जो आपके रिपोर्ट कार्ड में इस पूरे गांव में फर्स्ट आई थी। और उसने अभी तक 15 साल के बाद उसके दफ्तर में वो तस्वीर लगी। दैट्स कॉल्ड चेंजिंग द इक्विलिब्रियम, राइट? दैट्स व्हाट हैपेंड। अब उस वक्त था, लेकिन इंप्रूवमेंट क्या है यार? ये वो 4 परसेंटेज पॉइंट्स। अच्छा, हमारा ख्याल था कि यार हम इतने एम्बिशियस नहीं थे, हमारा ख्याल था ये फेड आउट हो जाएगा यार, चलो ठीक है, हो गया, रिजल्ट आ गया, पेपर छाप गया, ऑल दैट स्टफ, बट वी सेड वी विल ट्रैक एंड सी। ये फिर हम दोबारा गए, राइट? 2011 में, ये 2004 में इंटरवेंशन हुई थी, 11 में हम दोबारा गए। जो उस वक्त थे ये वही बच्चे थे जिनको हमने किया। फिर 2018 में उन्हीं बच्चों को भी ट्रैक्ड, ये हमारा हाउस होल्ड सर्वे था, वही बच्चे जिनके ऊपर ये ट्रीटमेंट हुई थी, ठीक है? 75% को हमने दोबारा सर्वे किया। ये सोचें 15 साल के बाद, उस वक्त अगर बच्चा 9-10 साल का है, वो 15 साल का 25 साल का हो गया। कुछ उनमें दुबई चले गए थे, लड़कियों की शादियां हो गई थी। आप सोचे किसी के ससुराल में जाके आप फोन करेंगे जी वो आपकी बहू थी, वो उसको हमने 10 साल पहले उसको टेस्ट किया था, जरा उससे बात करने थे। वो कहते तुसी कौन भाई, कितने आ गए हो, की हो गया फलाना। बट वी डिड इट एंड वी गॉट अबाउट 85% फॉर अ लॉन्ग टर्म स्टडी। दिस इज अ वेरी बिग नंबर। We couldn't track everybody, but we tracked about 85% of them. Lot of work, lot of money, lot of heartache, but we did it. अच्छा, cognitive skills किए, फिर जिष्णु ने functional किया। ये एक separate study है, ये इसमें नहीं, मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगा उसकी। Social emotional भी कर रहे हैं, ये psychology, मरियम, this is one of the things people are doing a lot. I have done it in KP with teachers, right? So how many people are familiar with like the Big Five? Big Five is this big psychological measures. ना इसमें होती है, क्या होती है? Extroversion, conscientiousness, neuroticism. Anyway, there's 2 more. So ये psychological tests बने हुए हैं लोगों की psychology test करने की। फिर यहाँ याकूब नहीं है, हमारा SOE का illustrious graduate, उसका favorite grit, right? ये मैंने भी किया टीचरों के साथ। So there are all these questionnaires to be able to measure grit. You understand grit, right? Like resilience. तो आप ये टेस्ट कर सकते हैं। ये फिर हमने ये भी किए हैं, रिस्क टेकिंग, सेल्फ कंट्रोल, आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन। द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ टेस्टिंग जो हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी में एक्चुअली वी शुड डू इट, यू नो, विद आई मीन आई विल बी हैप्पी टू वर्क ऑन दैट। कि आपका जो आप ये प्रोग्राम जो लॉन्च कर रही हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी का, उसमें कम से कम ये कंपोनेंट डालें ऑफ मेजरमेंट एंड ऑल दैट, ठीक है?
दिस इज द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेम किड्स. वही बच्चे जिनको हमने 2004 में टेस्ट किया था, अब उनकी एज डिस्ट्रीब्यूशन ये है. क्योंकि कोई 12 साल का था वो 30s में चला गया है, कोई 7 साल का था वो पीछे है, बट द बल्क ऑफ देम आर राइट अराउंड हियर ना, इन 20 से 25 साल में. दैट्स अबाउट द मेजॉरिटी ऑफ द किड्स दैट वी वेंट बैक टू. क्या व्हाट डू वी फाइंड 15 years later? ये बहुत इंटरेस्टिंग है. ओके, सो दिस इज देयर एनरोलमेंट स्टेटस in 2018. What do you see, right? So this is how much education they have. कुछ वो जो है वो ये हाउस होल्ड वाले हैं, कुछ उधर ही रह गए जहाँ पे शुरू ही नहीं हुए थे. But you know about 90% of them have gone past to age 6, grade 6. उसके बाद गिरनी शुरू होती है. लड़के जो है वो मिडिल स्कूल में ज़्यादा परसिस्ट करते हैं, पर यहाँ देखें क्या हो रहा है. लड़कियाँ 9वीं 10वीं से ऊपर चले जाएं. हमारे बच्चे हैं ये जो हमने उसको टेस्ट किए थे, ये अब लड़कियां जो है वो कॉलेज में उनसे बहुत ज़्यादा है. दिस इज व्हाट आई कॉल दिस रियल ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान. ये पिंडों की लड़कियां हैं और ये अब इस स्टेज में मोर गर्ल्स हैव गॉटन पास हाई स्कूल देन बॉयज. और ठीक ठाक बड़ा गैप है भाई. दिस इज वेयर आई स्टार्ट कमिंग इन. ओके, लुक एट द बॉटम. दिस इज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग. ये उन्हीं बच्चों की हम देख रहे हैं जिनके ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इंक्रीज हुए थे बिकॉज ऑफ द रिपोर्ट कार्ड इंटरवेंशन. और फिर अब इनका रेट ऑफ रिटर्न देख रहे हैं हम लेबर मार्केट में. लड़कियां नीचे, बॉटम में लड़कियां, ऊपर लड़के हैं. लुक वेरी इंटरेस्टिंग. लुक एट दिस पार्ट. ये क्या है? 0. दिस इज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, कि लड़कियां जो काम कर रही हैं. बाय द टिल यू हिट 10 years of schooling, labor force participation is pretty much 0. Right? It's flat. ये upward sloping क्यों है? Upward sloping इसलिए यहाँ पे है. वो बेसिकली लड़की जब BA पास करती है या ये 12वीं पास 13वीं पास, ये वाली लड़कियां जो हैं, ये बिन स्कैटर प्लॉट है, हर एक में ठीक ठाक है. दिस इज समरी ग्राफ. सो माय पॉइंट इज कि लड़कियों की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन स्टेज वेरी लो टिल दे हिट 10-12. लड़कों की बड़ा इंटरेस्टिंग है. आप देखेंगे कि जी जितनी स्कूलिंग बढ़ रही है लड़कों की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन गिर रही है. क्यों? Because they are staying in school. मतलब अगर आप स्कूल में होते तो आप लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन नहीं करते. सो जितनी एनरोलमेंट बढ़ती है आपकी हायर ग्रेड्स में, किड्स स्टे इन स्कूल लॉन्गर, सो दे एंटर द लेबर मार्केट लॉन्गर. दैट्स द इफेक्ट यू सी. ठीक है, ये बिकॉज दे सर्चिंग फॉर अ जॉब आफ्टर ग्रेजुएशन. अभी क्या हुआ है, ये भैया हमारा मैं आपको जो रिजल्ट दिखाऊंगा, इट्स रियली एन अंडर एस्टिमेट बिकॉज अ लॉट ऑफ दिस लीप सैंपल इज स्टिल इन स्कूल 20s में. उनका रेट ऑफ रिटर्न नहीं आ रहा क्योंकि वो तो मार्केट में नहीं आए. मार्केट में वो आए हैं जो एडवांस एजुकेशन में गए नहीं. तो एनीथिंग दैट इफ वी सी, हम चाह रहे हैं कि अब हम दोबारा जाएं इन गांव में ताकि हम देख सकें. ये द सेम ग्राफ, छोड़ें इसको. अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. दिस इज, आप कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है. दिस इज, लुक एट दिस. दिस इज ऑलमोस्ट ऑल मैन माइग्रेशन. ये हम एक बात कर रहे थे बंदे से जो वियतनाम में ये काम कर रहा है. पाकिस्तानी नंबर्स आर ऑफ द चार्ट्स ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन. 57% people stay in the same village. Okay. 8.5% move to 29% move to another village in the same district. कि अगर वो फैसलाबाद में हैं तो वो प्रोबली फैसलाबाद शहर चले जाते हैं. अटक में हैं तो अटक शहर में चले जाएंगे. रहीमियार खान में तो रहीमियार शहर में चले जाएंगे. 13% live outside of their district. Yeah, right? ठीक है. और क्या कहते हैं? Yeah, they are the ones who are outside, right? UAE, Saudi Arabia. तो हमने इनको ट्रैक किया है. सो ये अली, ये इमरान रसूल का काम है. बारी साहब जो इकोनॉमिस्ट हैं यहाँ पे, फरा, you know, one of the things they show is with these asset transfers and all that, one of the things that does is allows people to search for jobs longer. They don't have to go with the same fit. So migration जो है is a ticket out of the village. ये देखो भाई, this is very fascinating. हमने देखा कि लोग काम क्या करते हैं. This is पाकिस्तानी लेबर मार्केट भाई. हम लेबर मार्केट में बहुत इंटरेस्टेड हैं. कैन यू सी, कैन यू रीड इट उमैर? ये नजर आ रहे हैं? नहीं नहीं, ये वाला जो है, ये नजर आ रहा है. इसको बड़ा करना था. मोर किस तरह बड़ा कर सकते हैं? हाँ, एनीवे, इसको ये देखें. मैं आपको बताता हूँ क्या. अच्छा, द बिग जो है वो द स्ट्रेंथ ऑफ द बबल इज के कितने लोग हैं इसमें. ठीक है, ये बड़े बड़े ना. नॉट वर्किंग इज द लास्ट वन. ये लड़कों में है. ठीक है,
ये इसलिए कि ये बच्चे ज़्यादातर इसलिए कि ये आइदर दे आर लुकिंग फॉर बेटर जॉब्स और ये अभी दे आर स्टिल इन स्कूल, so that's a big number. What's a big number? Small business owner, ये क्या है, डेली वेज दिहाड़ी, ये कंस्ट्रक्शन किल्न वर्कर, ये रिटेल एंड सर्विस सेक्टर ड्राइवर, सैलरीड मंथली, ये है, ये इनकी वेजेस हैं. सबसे ऊपर वेजेस किसकी हैं? ये अगर इधर से इधर आ जाए, फैक्ट्री सुपरवाइजर, ये मतलब ये है कि एक दो लोग हैं. हेल्थ केयर वर्कर, वेटनरी स्टाफ, ब्लैक स्मिथ, इनकी वेजेस ज़्यादा हैं. टेक्नीशियन, अकाउंटेंट, मैनेजर प्राइवेट सेक्टर, आदमियों में टीचर, कारपेंटर. यार ये अगर आप ये डेटा देखें कि ये इनके ऑक्यूपेशनल चॉइसेस क्या हैं, इसको आप और भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं. दीज आर व्हाट दीज पीपल आर डूइंग. ये है ना, ये क्या है, वेल्डर, शेफ कुक, यू नो, दैट्स द चॉइसेस, राइट. अब इधर चले जाए, आप इधर आए ना, यहाँ तक यू गो अप टिल हियर, इट्स प्रीटी फ्लैट. ये वर्टिकल लाइन है, मतलब ये है कि इनकी तनख्वाह में कोई इजाफा ही नहीं हो रहा. ये अभी सारे 200 से कम है, मतलब ये 140 मतलब उससे कम है. इधर जाके थोड़ी बढ़ाई शुरू होती है. सो द वेज प्रोफाइल इज वेरी फैसिनेटिंग. लड़कियों में आए, लड़कियों में क्या है, लड़कियों की मार्केट ही कोई नहीं है यार. इधर देखें ज्यादातर क्या है, ये नॉट वर्किंग, ठीक है. मोटा गोला कौन सा है, प्रिडिक्टेबली टीचर, ये बाकी बेचारी थोड़ी मोटी इधर उधर करके है ये, राइट. सो कहने का मकसद ये मेरे नज़दीक ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि लड़कों की जो अनस्किल्ड वेज लेबर मार्केट है वो ठीक ठाक डेवलप्ड है. उसमें कोई 100 के करीब प्रोफेशन है भाई, डिस्टिंक्ट. लड़कियों में जाए तो है ही कोई नहीं. लड़की के पास क्या ऑप्शन है, ना वो गांव से बाहर जा सकती है, ना वो माइग्रेट कर सकती है, ठीक है. वो क्या कर सकती है, शादी करेगी तो किधर होगी, इधर होगी, इधर होगी है, ठीक है. नहीं तो क्या करेगी, टीचर. उसकी तो लेबर मार्केट ही कोई नहीं है भाई. इधर ये लेबर मार्केट है. माई सेंसेस, आई एम वर्किंग ऑन दिस. व्हाई आर गर्ल्स मोर परसिस्टिंग इन स्कूल्स? ये लीप्स में तो बहुत क्लियर आ गया है. अब जो मैंने 2024 का सर्वे किया स्कूल्स का, लड़कियों की मिडिल ग्रेड्स में एनरोलमेंट लीप्स के गांव में लड़कों से ज्यादा है. आप ठीक है, वो पहले था कि ये नहीं है, और वो एक्सेस भी बढ़ रहा है, वो बिकॉज वही स्कूल अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है. तो डिस्टेंस टू द नियरेस्ट मिडिल स्कूल भी गिरता जा रहा है. सो द पॉइंट इज कि लड़कों की जो लेबर मार्केट है वो अनस्किल्ड बहुत डेवलप्ड है. मैं अटक में बहुत काम में जाता हूँ फील्ड वर्क करने, क्योंकि पिंडी से पास है. वहां पूछे जाके लड़कों से की करना चाहते हो भाई तुझे. मेन थिंग इज कि ये आप मुझे बताएं कि ये जो पिंडी में बैरिया टाउन है, DHA है, ये किसने बनाया है? आपके मलक रियाज ने बनाया, फौज ने बनाया? नहीं, ये इन बच्चों ने बनाया है. दे आर द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स who have created this expansion of construction. अब ये जो ड्राइवर हैं, उधर ड्रीम क्या बच्चे की, लड़के की, कि ये डंपर चलाते हैं, वो ड्राइवर बनना है जी. वो 14-15 साल का बच्चा होता है, वो उधर उधर से सर्टिफिकेट कार कूर के कोशिश करता है मैं गांव से निकलूं और कहीं शहर में पिंडी में जाकर ड्राइवर बन जाऊं. लड़की बेचारी क्या करे? लड़की अगर परसिस्ट ना करे स्कूल में तो क्या होगा उसके साथ? दो चीजें होंगी. एक शादी, वो आपको पता है ना शादी क्या होता है, वो सुबीत बसंत ने कहा था शादी खाना आबादी या बर्बादी, राइट. वो अब देख लेंगे क्या होता है शादी के बाद. अच्छा, लेकिन दूसरा क्या है, अगर शादी ना हो, कि हमारे पास लीव्स का डेट है, हमारे पास टाइम यूज भी है इन सब बच्चों का. टाइम यूज क्या है कि लड़की स्कूल से निकलती है 6 घंटे अगर स्कूल में जाती है, ऐसे 5 घंटे स्कूल जाती है. जब वो ड्रॉप आउट होती है, वही लड़की जब वो ड्रॉप आउट होती है, वो 5 घंटे 1-to-1 ट्रांसलेट होता है इनटू हाउस वर्क. वो याद है, वो सारा दिन चूल्हे पे बैठी होती है और सफाई कर रही होती है, या उसकी शादी हो जाती है, उधर भी आके चूल्हे पे बैठी होती है, सफाई कर रही होती है, ठीक है. सो द पॉइंट इज कि लड़की के लिए इफ शी ड्रॉप्स आउट ऑफ स्कूल इट्स ओनली बैड न्यूज. तो वो तो स्टिक कर रही है. और मेरा अपना ये ख्याल है कि जो पाकिस्तान में हायर एजुकेशन एक्सपेंशन हो रही है, वो सारी की सारी लड़कियों की हो रही है. वो क्यों हो रही है? हाँ जी, एग्जैक्टली. दिस इज अ होल्डिंग स्पॉट एंड आई थिंक इट्स ग्रेट. I don't care what they learn in college or all. सब कहते हैं यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड खराब है. और भाई यूनिवर्सिटियां इस वक्त ने इस कौम की लड़कियों को बचा के रखा हुआ है फ्रॉम रियली बैड आउटकम्स. अच्छा, स्कूलों में जाएं, वो नहीं छोड़ेंगी. लड़की एक दफा घर आ गई तो उसकी अब्जॉर्बिंग स्टेट है, उसका कोई हाल नहीं है. तो स्कूल में बैठी हुई अच्छी बात है. सो दिस इज समथिंग वी हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट इन. एंड इफ यू थिंक what they are doing at home, most of them is what is called housework.
ये कॉटेज इंडस्ट्री जो है ये बहुत कम है यार, ये हमने बहुत डिटेल में पूछा है, तो हमारा भी यही ख्याल था जो आप बात कर रही हैं, लेकिन ये डेटा डजंट सपोर्ट इट। वो बेचारी फंस गई हैं, वो बहुत कम कर रही हैं, पेड लेबर इज वेरी लिटिल, चाहे वो घर में कर रही हैं या कहाँ कर रही हैं, कॉटेज कर रही हैं, नहीं है, ये बेचारी घर में बैठी हुई है, ये है यार, दिस इज व्हाट इट इज। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि 2018 में जब हमने रिपोर्ट कार्ड इंटरवेंशन की, हुआ क्या, अटेंडेड कॉलेज, जिन बच्चों को जो रिपोर्ट कार्ड विलेजेस में ट्रीटेड थे, 0.1 स्टैंडर्ड डिवीजन थी ना, हम हंस रहे थे आप लोग, कंट्रोल जिनको नहीं थे 12% ऑफ दोस किड्स एंडेड अप बियॉन्ड हाई स्कूल, ठीक है। इन द ट्रीटमेंट वो 0.1 जो थी 4 परसेंटेज पॉइंट्स मोर, सो वो अब उनका नंबर है 16%। So over a mean of 12 is a pretty big number ना, ठीक है। और grade 12 5 percentage point more. I think this is pretty big in terms of the changes in these people's lives. Yeah, this is the punchline. Punchline क्या है? Right here, log wages. और ये underestimate है, हम occupation control करें, हमने बहुत different versions किए हैं इसके. Log wages, this is causal effect, right, of the report card treatment. कि जो ट्रीटमेंट विलेजेस के बच्चे थे उनकी ऑन द एवरेज लॉग, ये लॉग है वेजेस का, तो लॉग आपको याद है, मैथ का भूल गया लॉग, और वो ये है कि लॉग का मतलब है कि लॉग डिफरेंस मींस रफली अ परसेंटेज, ठीक है। तो 11% बेहतर है, ओके ठीक है, ऑलमोस्ट, मतलब मैं आई एम वेरी गुड एट इग्नोरिंग दीज थिंग्स। अच्छा, वो ये है कि क्या मतलब है 11-12% का? 11-12% का मतलब है कि मेरी मदर है, उनकी एक मेड वो केयर गिवर का है, मेड नहीं है, वो मेड से बेहतर है, केयर गिवर है, उनको ख्याल रखती है, उसकी तनख्वाह है 30,000 रुपये, मेरे ठीक है, शी नॉट एक्सप्लॉइटेड, वो घर में रहती है, खाती भी है, सब कुछ करती है, उसका भाई भी वही रहता है, अब उसका कज़न भी आ गया, वो पता नहीं क्या होगा हमारे घर में वो पूरा, बट एनीवे अच्छी बात है, खाएं, बरकत है। वो 30,000 रुपया 12% का क्या मतलब है? 12% का मतलब है कि बेसिकली अगर वो रिपोर्ट कार्ड विलेज में होती तो उसकी तनख्वाह रफली होती 36,000 रुपया, ठीक है। सो मतलब आप डिफरेंस देखें ना कि 0.15 स्टैंडर्ड डिविएशन का जब ट्रांसलेट करते हैं तो बेसिकली 30,000 से वो 36,000 पे चली जाती है। अब आपका ख्याल है कि आप ये 5,000 की तो कॉफी पी लेते हैं एक दिन में, तो आप कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं है, बट एग्रीगेट इट ओवर 1-2 मिलियन बच्चियां अगर 30,000 के बजाय 36,000 बना रही हो, and that's a lot of money that is transmitting into those people's hands. That's the rate of return to foundational learning. थोड़ी सी इंप्रूवमेंट लर्निंग की हुई है तो इतना फर्क आना शुरू हो गया। वो अगर आपके पास कोई मैजिक वॉन्ड है तो आप 0.4 पे चले जाएं, वी डोंट नो, हमने एक्सट्रापोलेशन तो हमने की है, ये आदमियों का भी हो रहा है 0.1 0.0 डिपेंडिंग ऑन व्हाट टेक्निक वी यूज। ये पूरा सैंपल है, ये आदमियों का है, और ये अंडर एस्टिमेट है क्योंकि अभी सारे लोग लेबर मार्केट में नहीं है। हमारा ख्याल है कि जिनमें सबसे ज्यादा रिटर्न आएगा वो तो भी स्कूल में है, तो दिस इज अंडर एस्टिमेट, इससे ज्यादा होगा। ओके मैन वीमेन बेचारी यार क्या कहूँ मैं, लुक एट द सैंपल राइट, मतलब ऐ कोई नहीं, मतलब देयर इज नोबडी इन द सैंपल जो कि काम कर रही है, इतनी थोड़ी है। हमारे सैंपल में जो फॉरगेट द रॉ डेटा इज कि अगर लड़की, हमारे सैंपल में एवरेज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन लड़कियों की 6% है, 6%, ठीक है। और जब लड़की 10वीं 12वीं पास हो जाती है तो इट गोज टू 24%, ठीक है, बिग इंप्रूवमेंट। 6% इज लाइक लोएस्ट इन द वर्ल्ड। इंडिया का भी बहुत कम है, चलो हम इससे खुश हैं कि इंडिया का भी थोड़ा कम है उसी से खुशी ले ले, बट these are remarkably low numbers, ठीक है। सो द पॉइंट इज, आई मीन आई विल कम बैक टू दिस। अच्छा, ये रिजल्ट है कि दे आर नॉट, लेबर फोर्स रिपोर्ट कार्ड विलेजेस की कम है क्योंकि ये कॉलेज में है, ये लॉग अर्निंग्स है, ये है जो थोड़े बड़े बच्चे हैं, ये बड़े लोग हैं, ये सैंपल में है। तो हमने काफी कट्स किए हैं डेटा के इसके ऊपर। अच्छा हाँ, ये भाई अब आए ना असली काम पे, कॉस्ट ऑफ द रिपोर्ट कार्ड, ये टोटल बेनिफिट्स हैं। अगर आप ये सारे बेनिफिट एग्रीगेट करें हमारी पॉपुलेशन के ऊपर, इट कम्स टू अबाउट $3,000 लाइफ टाइम पर पर्सन, ठीक है। इतना फर्क पड़ता है कि इंसान की जिंदगी में कॉजल impact of increasing foundational learning. If you break it down, ये आजकल सब मांगते हैं ना, वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू फॉर मनी, रेचल ग्लैंड आजकल हर एक, ये कितनी, व्हाट्स द वैल्यू फॉर मनी? Well, the cost of the report card intervention, पूरी रिसर्च प्रोजेक्ट का was $3 per child, ठीक है।
ये बेनिफिट है। अब आगे चले जाए, हमने और भी चीज़ें करनी है। कुछ रिपोर्ट कार्ड विलेजेस में लोग मूव फ्रॉम पब्लिक स्कूल टू प्राइवेट स्कूल्स। जब जो रिपोर्ट कार्ड में वो एक्स्ट्रा कॉस्ट ये है, पब्लिक स्कूलिंग की कॉस्ट ये है, उनके जो हायर एजुकेशन के एक्सपेंसेस हुए हैं वो ये हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लॉस्ट वेजेस बिकॉज दे स्टेड इन स्कूल लॉन्गर ये है, टोटल कॉस्ट ये है, टोटल बेनिफिट ये है, QED बेनिफिट कॉस्ट रेशियो 6.4, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 21% अ ईयर। आप मुझे बताएं, मैं पाकिस्तान आता हूँ, बहुत आता हूँ, तो एक ज़माना था ना, चीमा साहब क्या होता था, वो आपके दोस्त क्या नाम है, जस्टिस साहब साकिब निसार, वो क्या करते थे, उन्होंने गाने लगाए हुए थे किस चीज़ के, डैम बनाए। ठीक है, हाँ ना, डैम बनाना, पाकिस्तान के सारे बच्चे बाहर खड़े होकर तराने गाते थे। well, दिस इज मोर देन अ डैम। ये कई लोग कहते हैं आजकल सबसे बड़ा दुनिया में, आप सब लोग बेवकूफ़ हैं इंक्लूडिंग मी, कि हमने एप्पल स्टॉक नहीं खरीदा जब ये लीव शुरू किया है, राइट। अगर लीव शुरू किया होता और एप्पल स्टॉक खरीदा होता, दिस इज अ हायर रेट ऑफ रिटर्न देन दैट। दैट इज द मोस्ट वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट इन द वर्ल्ड राइट नाउ। दिस इज मोर देन दैट पर ईयर, दिस इज पर ईयर। ठीक है, हमारा ये ख्याल है कि व्हाट इफ यू कुड डू अ लॉट बेटर। ये है 1 स्टैंडर्ड डिविएशन का गेन, सॉरी 0.1 का। ठीक है, अगर आप 0.4 पे चले जाएं, दिस इज व्हाट यू विल गेट इन वेजेस। तो अगर हम कोई बेहतर तरीका बना सकते हैं लर्निंग को इंप्रूव करने का, द वेजेस गेन आर गोइंग टू बी अमेजिंग। लेबर मार्केट इज रिवॉर्डिंग फाउंडेशनल लर्निंग। इसके दो इफेक्ट हैं यार, ये तो रिपोर्ट का, अच्छा हाँ, ये दास का फेवरेट है, ये मैंने भी इस्तेमाल किया है। बाय द वे, दिस इज, ये हमारा पेपर है, ये भी AR का पेपर है, टू मूविंग समबडी फ्रॉम द वर्स्ट स्कूल टू द बेस्ट स्कूल इन द सेम विलेज। दिस इज कॉजल ऑल्सो, इसमें बहुत काम किया हुआ हमने। 2.6 ईयर्स इंक्रीज होती है स्कूलिंग। लाइफ टाइम गेम्स इन अ विलेज, अगर आप विलेज का सबसे खराब स्कूल को सिर्फ उसके विलेज के ही बेस्ट स्कूल के लेवल पे ले जाए, लाइफ टाइम वेज गेन्स ऑफ दोज किड्स इन द विलेज विल बी $300,000। तो अगर ये कहानी है तो हाउ मच शुड वी बी स्पेंडिंग? रेट ऑफ रिटर्न है ना ये। बाय द वे, ये अमेरिका में भी इसी तरह के रिजल्ट हैं, जब लर्निंग इंप्रूव होती है, ये होता है, वो होता है। हमारा ये ख्याल है कि अगर आप $1.5 बिलियन साल का भी लगाए ना एजुकेशन के ऊपर, फाउंडेशनल लर्निंग को इंप्रूव करने में, वो रेट ऑफ रिटर्न सिर्फ एक्स्ट्रा तनख्वाहों का, सेल्स टैक्स जो है वो 1.5 बिलियन से ज्यादा होगा। हमें जो हमारे साथ एक बहुत बड़ा हैंड हो रहा है, वो हैंड हो रहा है कि जी हम कह रहे हैं हमारा पैसे नहीं है। ठीक है, पैसे नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब यह है कि पैसों में आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको काट करें। पैसे नहीं है तो कुछ और काट करें, जो भी करें, मुझे क्या पता क्या काट करें। बट द पॉइंट इज व्हाट यू नीड टू इन्वेस्ट इट इन इज द रिसोर्स एलोकेशन। क्या होती है, एज इकोनॉमिस्ट हम एक ही चीज की एडवाइस करते थे कि एलोकेट रिसोर्सेज टू द बेस्ट यूज। ये इकोनॉमिक्स की पहले दिन हम इकोनॉमिक्स में पढ़ाते हैं, ये माइक्रो में दूसरा लेक्चर होता है, पहला लेक्चर होता है। द पॉइंट इज कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एक रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, और ये पेमेंट आपका वो मतलब पूरा होगा ना उसका, मतलब वो आपका पैसा सारे का सारा वापस आ जाएगा। इसमें मैं एक और चीजें कहना चाहता हूँ। हाँ, ये इसके दो इफेक्ट हैं। ये भी कर रहा है ये। अगर अब आप मुझे कहें कि जी ये आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का क्या क्राइसिस है, उसका क्या हल करना चाहिए, मैं कम से कम आपको ये कह सकता हूँ कि अगर आप फाउंडेशनल लर्निंग को इंप्रूव करिए, मेरे पास और भी बहुत डेटा है, अगर आप फाउंडेशनल लर्निंग को इंप्रूव करें तो ड्रॉप आउट्स गो डाउन अ लॉट, आपकी स्कूल अटेनमेंट बढ़ती है। तो मैंने ये पाए वालों को कहा था, अभी मैं इस्लामाबाद में था, कि अगर आपको इस वक्त हर चीज़ को एजुकेशन में सिर्फ ये लर्निंग के लेंस से देखें, ये बाकी मसले खुद ही हल होने शुरू हो जाएंगे। तनख्वाहों के मसले भी हल होने शुरू हो जाएंगे, ड्रॉप आउट्स के मसले भी हल होने शुरू हो जाएंगे, लड़कियों के भी मसले, लेबर मार्केट में आगे जाके देखते हैं, ऑल ऑफ दैट, राइट। सो ये इंटरैक्ट है, डायरेक्ट इफेक्ट है। ये मिन्सेरियन है, ये पूरा, ये हमने काफ़ी काम किया लेबर मार्केट्स में क्या होता है, ये पूरा एक स्टडी है कि जी हाउ डू दीज थिंग्स। हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इन गेम्स को। ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ में किया हुआ है, ये जिष्णु ने किया हुआ है। आई वॉन्ट ये भी छोड़ दें यार। यूके में 10 मिलियन बच्चे हैं, कितना खर्चा करते हैं, 80-85-90 बिलियन डॉलर। हमारे कितने बच्चे हैं, हमारे मतलब करोड़ बच्चे हैं, राइट। वो है, हम कितना खर्च करते हैं, $2.5 बिलियन। एजुकेशनल एक्सपेंडिचर्स इन पाकिस्तान, अगर आप फी स्कूल हर साल पंजाब में $30,000 एक्स्ट्रा खर्च करें, दैट इज इवन फीजिबल इन द लॉन्ग रन, वो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। ठीक है,
वी आर टॉकिंग अबाउट अ मैसिव इंक्रीज इन ये प्रोडक्टिविटी. आप कहते हैं ये मुल्क कहीं नहीं जा रहा, तो हर वक्त होता रहता है प्रोडक्टिविटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. दिस इज द वे प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का है, ये तरीका. दिस इज द कॉजल स्टोरी. ये 2024 में ये नजर आ रहा है भाई. ये हमारा जो है, हाँ, ये बाय द वे सम गुड न्यूज. ये मैंने टेस्टिंग की है. दिस इज नॉट द सेम किड्स बट द सेम विलेजेस, सेम स्कूल्स. ये 2024 में, अब 2003 में देखें और 2024 में देखें कितना फर्क है हर सवाल में, राइट, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स फ्रैक्शंस. मेरा सवाल यार, मुझे आई एम कर्स्ड. नो रियली व्हाट्स गोइंग ऑन. ये रेट ऑफ रिटर्न आप सोचें ये किस तरह बढ़ रहा है. ये रेट ऑफ रिटर्न बढ़ रहा है, ये हमें अंदाजा नहीं है. ये हमें अंदाजा नहीं है कि एक गरीब आदमी जिसकी माँ अनपढ़ है, ठीक है, उसको अगर आप ये इस लेवल पे ले आए ना, ये सारा जो गेन आ रहा है वो बिल्कुल सिंपलेस्ट सवालों में आ रहा है. सो बेसिकली हमारा जो हमने जो रिपोर्ट कार्ड किया है, ये 0.1 स्टैंडर्ड डिविएशन, ये हायर ऑर्डर स्किल्स नहीं आ रही. एक हमारा मशहूर इकोनॉमिस्ट है डेविड कार्ड, नोबेल लॉरिएट. डेविड कार्ड ये कहता है कि उसने सारी जिंदगी लगाई है ऑफ थिंकिंग अबाउट द लेबर मार्केट फॉर पीपल हु कांट हेल्प देमसेल्व्स. ये लेबर मार्केट वो नहीं है जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ाएगी. ये लेबर मार्केट ये नहीं है जो आपको MIT ले जाएगी या इनाम जीतेगी या UN मॉडल UN कराएगी. इस तरह की चीज़ें नहीं है. ये लेबर मार्केट है जिसमें बेचारे को ये नहीं पता कि ये एक केले की तस्वीर है और यहाँ केला लिखा हुआ है, उसको बराबर किस तरह करें. हम ये कह रहे हैं कि अगर आप उसको इन बेसिक स्किल्स में, मैच पिक्चर, ये वो मैथ एडिशन, इस तरह की चीज़ों में बेहतर कर दें, उसकी ज़िंदगी में इतना फ़र्क पड़ेगा कि वो 5, 7, 10 हज़ार रुपये ज़्यादा कमा लेगा. That's पाकिस्तान. ये भूल जाएं कि जी वो पाकिस्तान की एजुकेशन स्टैंडर्ड बहुत खराब है. जी बहुत खराब है, होगा खराब भाई, मैं क्या करूं. मैं तो कह रहा हूं कि जो बिल्कुल नीचे हैं, उनको अगर आप थोड़ा सा भी ऊपर ले आए, वो उसी डेसाइल में रहते हैं, 50 से 54 में जा रहे हैं भाई. अगर आप वो भी कर दें तो उनकी जिंदगियों में इतना फर्क पड़ेगा कि वो जो एक्स्ट्रा खर्चा आप करेंगे वो सारे का सारा पूरा होगा. और अगर आप ये मिन्सेरियन टाइप काम करें तो अगर आप 0.4 पे उसको ले जाएं, आप इस मुल्क की शक्ल बदल देंगे. लाम्स में नहीं कोई फर्क पड़ेगा, वो उनमें से फिर भी कोई बच्चा लाम्स में नहीं आएगा. दैट्स ओके. लेकिन नीचे के उसमें राइट, आखिरी यार ये पीसा, ये सारी दुनिया में मसला है यार. ये हमारा मसला नहीं है, हर जगह मसला है. ये जो है ना, ये है भाई, ये मैं फाइनल कह रहा हूं, ये है, ये हमारी अप्रोच है. So all the fundamental constraints that household parents and children face when trying to educate their children. आपको पूरा इकोसिस्टम, जो रिपोर्ट कार्ड था उसने गांव की हर चीज को टच किया. ठीक है, ये मैं इस पे I've come to this conclusion कि यार ये हाउस होल्ड जो है ना, दे आर अनएबल टू सब्स्टिट्यूट फॉर अ स्कूल. स्कूल को आप छोड़ नहीं सकते, चाहे इंटरनेट आ जाए या कुछ आ जाए. मेरे पास अभी है इंटरनेट लीव्स के सैंपल में 2024 में 10% बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक है, इट्स नॉट वेरी मच. ट्यूशन कर रहे हैं अबाउट 50%. ठीक है, सो द पॉइंट इज कि आपको ये करना पड़ेगा, ये स्कूलों के अंदर घुसना पड़ेगा. और फिर ये हमारा बॉटम लाइन है कि स्कूल कर सकते हैं चेंजेस. हमने स्कूलों से बात किया कि यार तुम क्यों नहीं कर सकते. वो कहते हैं हम कर सकते हैं लेकिन हमारे पास या पैसे नहीं है या ये नहीं है. सो यू फोकस ऑन एलिविएटिंग कंस्ट्रेंट्स दैट स्कूल्स एंड पेरेंट्स फेस. आई थिंक अगर आप ये करें, आपको द प्रॉब्लम इज कि ये 20 साल के बाद रिटर्न आएगा. सो अभी ये है कि जैसा एजुकेशन फाइनेंसिंग क्वेश्चन, डैम का रिटर्न कब आएगा? अगले दिन आ जाएगा. डैम 10 साल तो लगेंगे डैम बनाने में, राइट. 3 साल लगेंगे पहले पॉलिटिक्स करने में, फिर जाके वो होगा, फिर लोगों की ज़मीनें खरीदनी है, ये करनी, उसमें हमें कोई तकलीफ नहीं है. किसी को पूछोगे भाई डैम का रिटर्न कब आएगा, वो मेरी ज़िंदगी में तो मत ही आया, मेरी ज़िंदगी तो बनेगा ही नहीं, राइट. वो हम करने को तैयार हैं. ये जो है रेट ऑफ रिटर्न करना कि नहीं जी ये किसको करें, आप कहें ना जाके, मतलब आई हैव टॉक टू सम पीपल. सो वन ऑफ द थिंग्स इज कि ये शुरू हो गया. फैसल मुझे बता रहा था कि ये क्या कहता है एजुकेशन बॉन्ड्स एंड ऑल दैट. पाकिस्तान में इस वक्त इट इज फीजिबल टू बोरो $1.5 billion a year. IMF से हम बोरो करें अजीब अजीब बकवास के लिए. ठीक है, हर वक्त हम गए होते हैं उनके पास कुछ कॉल लेके, इसके लिए नहीं जा रहे. अगर इसके लिए आप बोरो करें, वी हैव टू फिगर आउट, इसमें काफी स्टेप्स हैं, पैसे कैसे वापस आएंगे, क्या होगा, टैक्सेस, लेकिन हो सकता है. ठीक है, ओके, आई विल स्टॉप राइट हियर. Thank you so much.